Hello students, how are you? How is going your study? Very well, marvelous, fantastic, very good. Today we are going to discuss about application of Gauss theorem. Yes, dear student, today we are going to discuss about application of Gauss theorem. The first application is that find the electric field due to a single point charge, and prove also Coulomb's law, Okay, now pay your attention, dear student. Consider this is the point charge plus Q, which is situated at point O in vacuum. Okay, consider a point charge plus Q which is situated at point O, and there is a point P at which we have to determine the electric field at distance R. Consider a point charge plus Q at point O in vacuum and a point P at which we have to determine electric field intensity which is situated at distance R. एक point P ले लिया जो कि R distance पे, वहाँ पे plus Q की वजह से आपको क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है. नाउ वी कंस्ट्रक्ट व्हाट? गाउसियन सरफेस. एंड गाउसियन सरफेस किस तरह का होना चाहिए? गाउसियन सरफेस मस्ट बी सिमेट्रिक. यस, एंड नहीं, इट इज नॉट नेसेसरी, बट टू अवॉइड द कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन वी शुड. Must was wrong, should you can use. Okay, so we consider for a point charge there is a Gaussian surface which is spherical, not perfect spherical. Okay, आप डिवाइडर से ड्रॉ कर लें. Now dear student, this is the spherical. सर नजर तो नहीं आ रहा? स्पेरिकल प्रोजेक्शन लेते हैं बोर्ड पे. बोर्ड 2D है, 3D नहीं है ना. स्पेरिकल है ये. ड्यू टू पॉइंट चार्ज स्पेरिकल हमने गाउसियन सरफेस अज्यूम किया है, और यहाँ पे एक सरफेस एरिया वेक्टर आपको क्या करना पड़ेगा? अज्यूम करना पड़ेगा. दिस इज द एरिया वेक्टर एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इट? सर ऑलवेज नॉर्मली आउटवर्ड. यू कैन से रेडियली आउटवर्ड टू द सरफेस. Okay sir, and what is the direction of electric field due to point charge? We know that always electric field goes away from positive charge. तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो भी क्या होगा? रेडियली इधर ही होगा. भाई आप देखो तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगा? बिल्कुल रेडियली आएगा. These are the electric field lines. You can say रेडियली तो आएगा. सही है? सुनो, am I right? Obviously right sir. हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. फ्रॉम देयर आई एम सेइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज रेडियली आउटवर्ड फॉर ए पॉजिटिव चार्ज, पॉइंट चार्ज. सो व्हाट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर? सो थीटा इज 0 degree. Got that point? So I am going to write whatever I am discussing here. Ready for that? Yes. Yes, dear student, whatever I discuss, I have written here. Read carefully. Consider a single point charge at plus Q which is situated at point O. Okay, जो कहाँ पे लाई करता है? Point O पे in vacuum. And P is the point at which electric field is to be determined. ये point हमने P consider किया था जहाँ पे electric field determine करना है. For this we have to construct a Gaussian surface. Which is encloses the charge Q symmetrically. देखिएगा इस सरफेस ने enclose कर दिया है किसको? चार्ज Q को symmetrically, and the direction of electric field due to this charge will be radially outward. तो इतना क्लियर है? फॉर आपके नोट्स बनाने के लिए मैंने ये लिखा है. चलो आगे चलते हैं. यस मैजिक. ओके, नाउ कम स्टूडेंट. यस, नाउ डियर स्टूडेंट, नाउ what will you do? We have to consider a small area vector ds. Okay, take a small area vector ds on the Gaussian surface, and you can say direct you can apply Gauss theorem. What is the Gauss theorem?
according to the Gauss theorem, the electric flux linked with Gaussian surface is given by yes, according Gaussian surface, according Gauss theorem, the electric flux linked with this Gaussian surface due to this charge, what will that, sir, is given by phi is equal to total charge upon epsilon naught. Why? Because there is a vacuum, so we are consider only epsilon naught. What is total charge inside it? Total charge कितना है? Plus q upon epsilon naught. So this is the equation first. Now from the definition of electric flux, from definition of electric flux, what can you write? Sir, what is the definition? So net flux is equal to cyclic integral E dot ds. ये भी तो फ्लक्स है, गेटिंग दिस? तो यहाँ से हमने इक्वेशन सेकंड, नाउ ये भी फ्लक्स है, ये भी फ्लक्स है, सेम सरफेस के लिए गिवन है, तो हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को इक्वल पुट कर देंगे. रेडी फॉर दैट? ओके, यस. नाउ from equation first and second we have, so cyclic integral E dot ds is equal to q upon epsilon naught. q upon epsilon naught कहाँ से आया था? गॉस डेफिनेशन से, गॉस थ्योरम से, और E dot ds फ्लक्स की बेसिक डेफिनेशन से. तो यहाँ से बताओ क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा सर E ds cos थीटा. व्हाट इज द थीटा? 0 डिग्री. q upon epsilon naught. E comes outside, what will there? ds q upon epsilon naught. Now tell me, what is the value of cyclic integral of ds? So ds is the small area when you do integration for complete surface, so it will give the complete area of this Gaussian surface. So what is the complete area of Gaussian surface? 4 pi r square, that is q upon epsilon naught. Now from here, what is the electric field? So you can write E is equal to q upon 4 pi epsilon naught r square. Sir, you also can write it E is equal to kq upon r square. Am I right? Why? Because k is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught. So this is the electric field due to a point charge at distance r. बिल्कुल यही था फॉर्मूला. बहुत बढ़िया, शानदार, वेरी गुड. अब चलते हैं किसे कूलॉम्स लॉ भी प्रूव करना है. कूलॉम्स लॉ क्या कहता है? कूलॉम्स फोर्स F इज इक्वल टू k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर. आइए प्रूव करते हैं. यस मैजिक? यस डियर स्टूडेंट, आ जाइए. नाउ वी कंसिडर ए स्मॉल चार्ज, यू कैन से q नॉट टेस्ट चार्ज, ठीक है, विच इज प्लेस्ड एट द पॉइंट P. Why? Because we are going to find out the Coulomb's force due to this charge. What will that? Sir, we know that F is equal to Q, जो भी चार्ज है वहाँ पे रखा हुआ, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड. यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? E, और यहाँ चार्ज रखा Q नॉट, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा डियर स्टूडेंट? सर F इज इक्वल टू QE. हमें पता है कोई भी चार्ज रखोगे तो उस पर फोर्स कितना लगता है? QE. किस में? इलेक्ट्रिक फील्ड में. तो हमने पुट कर दिया. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E? E अभी आपने फाइंड किया था KQ अपॉन R स्क्वायर, इजंट इट? तो पुट द वैल्यू. सो you will have KQ upon R square. After rearranging, you will have F is equal to Q naught upon R square. Say yes or no? यही है Coulomb's law. This is Coulomb's force of electrostatics. Say yes or no? यही तो है Coulomb's force of electrostatics. तो यहाँ से हमने क्या प्रूव कर दिया? Coulomb's law भी प्रूव कर दिया इजीली. गॉस थ्योरम से हमने फाइंड कर लिया k upon r स्क्वायर, और Coulomb's law भी यहाँ से प्रूव कर दिया. यस, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, आगे चलते हैं. यस मैजिक?
Yes, dear student, the second application is find the electric field intensity due to an infinity long, or you can say long charged wire having linear charge density lambda, and where is point situated? Point P is situated at r distance perpendicularly to the long charged wire. क्लियर है? डायग्राम बना दे? यस, आ जाइए डायग्राम बनाते हैं। यस डियर स्टूडेंट, आ जाइए। दिस इज द लॉन्ग इन्फिनिटी वायर, दिख रहा है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, और पॉइंट पी कहाँ लाई कर रहा है? एट आर डिस्टेंस परपेंडिकुलरली टू द एक्सिस ऑफ वायर। ओके, नाउ फाइंड ड्यू टू दिस वायर कितना होगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड? हमने पहले फाइंड कर चुके हैं 2k लैम्डा अपॉन आर। अब यहाँ पे गॉस थ्योरम से भी करेंगे, वहाँ काफी कैलकुलेशन किया था, इंटीग्रेशन वगैरह जबरदस्त था ना। अब यहाँ पे देखिए कितना इजीली होता है। आइए देखते हैं, पहला स्टेप क्या होता है? अज्यूम गाउसियन सरफेस, कंस्ट्रक्ट गाउसियन सरफेस। कैसी आएगी गाउसियन सरफेस लीनियर चार्ज वायर के लिए? सर इसको कवर करना है। ये देख लो ट्यूबलाइट है, इसका लाइट चारों तरफ जा रहा है, क्योंकि उससे भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड जाएगा। भाई यही वायर है, इससे भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली क्या जाएगा? आउटवर्ड जाएगा, ऐसा चारों तरफ। ठीक है, उसको कवर करना है तो क्या करना पड़ेगा? एक और सिलेंडर आपको कंसीडर करना पड़ेगा। राइटिंग, तो गाउसियन सरफेस कैसी हो गई? सिलेंड्रिकल। तो गाउसियन सरफेस मैंने कंसीडर कर ली, दैट इज, और वो कहाँ से पास होनी चाहिए? वो इस पॉइंट पी से पास होनी चाहिए। ठीक है, यही हमें इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन करना है। सो गाउसियन सरफेस शुड बी रेडियस ऑफ आर। कितनी होनी चाहिए रेडियस? बिल्कुल आर होनी चाहिए डियर स्टूडेंट। यहां से देख लेते हैं, दिस इज द गाउसियन सरफेस ऑफ रेडियस आर। कितना रेडियस है? सर आर रेडियस है, और ये हमने ड्रॉ कर दिया। लेंथ कितनी है इसकी लेंथ आप कंसीडर कर सकते हैं डियर स्टूडेंट, एल, हैविंग लेंथ एल। व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट? एल। गाउसियन सरफेस इमेजिनरी होती है, सो थोड़ा सा अच्छा डायग्राम बनाइएगा। डायग्राम के भी मार्क्स मिलते हैं आप लोगों को। हाँ, डायग्राम के भी मार्क्स मिलते हैं। यस, गाउसियन सरफेस अभी ठीक है? नहीं है? ओह ठीक है, अभी भी ठीक नहीं है। I think okay. Is it okay? Okay, ठीक है। Now, dear student, pay your attention. How many surfaces are there? कितनी surface है cylindrical Gaussian surface में? ये cylindrical Gaussian surface है dear student. Cylindrical, कौन सा कल? Cylindrical Gaussian surface. Okay, देखिए, एक तो उसमें हो गया कर्व सरफेस, एक हो जाएगा ये सर्कुलर वाला, ये भी सर्कुलर वाला। तो आपको नज़र आ रहा होगा सर, ये रहा एक, इसको बोल देते हैं S1। तो यहाँ पे मैंने एक एरिया वेक्टर लिया स्मॉल। ये सरफेस कौन सी है? S1। दिस इज द S1, दिस इज द S2 एंड दिस इज द S3। ओके, तो यहाँ DS1 लूँगा तो इसका नॉर्मल कितना आएगा? हमेशा क्लोज सरफेस का जो नॉर्मल देखा जाता है वो क्या आएगा? परपेंडिकुलरली अवे फ्रॉम द सरफेस। गेटिंग दिस? अगर नहीं पता तो आप पीछे वाले वीडियो जाके ज़रूर देखें, ठीक है, मैंने वहाँ बताया। यस, तो यहाँ देखा तो इसका नॉर्मल ऊपर आएगा, दैट इज़ द DS1 वेक्टर। गेटिंग दिस? ओके, ये स्मॉल एरिया हमने यहाँ पे कंसिडर किया है DS1, तो इसका DS1 एरिया वेक्टर नॉर्मली अपवर्ड आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपको पता ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? रेडियली अवे होगा, चारों तरफ होगा रेडियली, इधर 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 इधर। ठीक है, मैंने एक लाइन लिया है डायग्राम को अच्छा बनाए रखने के लिए। यहाँ पे लेते हैं नॉर्मल, इसमें क्या आएगा? सर नॉर्मली डाउनवर्ड। ठीक है, DS2 वेक्टर। क्यों? अरे भाई नीचे जाके देखोगे तो इसकी सरफेस से क्या होगा? अवे जाएगा, दूर मतलब नीचे। ठीक है, और यहाँ बता दो मुझे, यहाँ पे क्या होगा? सर यहाँ पे DS3 इस तरह से आ जाएगा, है ना। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। ऊपर जैसे बात की, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा? सर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से रेडियली, इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। तो यहाँ तो एंगल हो गया 90 डिग्री, यहाँ एंगल हो गया 90, यहाँ एंगल हो गया 0 डिग्री, और यहाँ एंगल हो गया 90। गॉट द पॉइंट? तो आइए अप्लाई करते हैं, और जो लैंग्वेज लिखनी है वो लिखता हूँ वन टाइम। यस डियर स्टूडेंट, आई हैव रिटन
जो भी हमें इसमें लैंग्वेज लिखना था, व्हाट इज दैट, टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट एट P, कंस्ट्रक्ट ए सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस ऑफ लेंथ L। ठीक है, हमने एक गाउसियन सरफेस कंस्ट्रक्ट किया जिसकी लेंथ कितनी है, L है, और रेडियस कितनी है, R, इन सच ए वे दैट द लीनियर चार्ज वायर लाइज एट द एक्सिस ऑफ गाउसियन सरफेस। देखो इसकी एक्सिस पे लाई कर रहा है, ये दिख रहा है नहीं दिख रहा, यस ऑब्वियसली इसके एक्सिस पे लाई कर रहा है ये, है ना, तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। नाउ टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हमें जरूर करनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्शन बिना आप एंगल नहीं फाइंड करोगे। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज इज रेडियली अवे। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो रेडियली क्या होगा, अवे होगा। अब चारों तरफ देख सकते हैं, मैं यहाँ अगर छोटा सा डायग्राम बनाऊं तो देख लीजिएगा इस डायग्राम को। अगर मैंने ये गाउसियन सरफेस यहाँ पे ड्रॉ की है, ठीक है, यहाँ पे गाउसियन सरफेस ड्रॉ की है, और मैं ये लीनियर चार्ज वायर की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको बता रहा हूँ, देखिए ध्यान से, ये प्लस 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 प्लस, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगा लाइक दैट ईच एंड एट पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे भी होगा ऐसे ही, तो मैं वो बना नहीं रहा हूँ, ठीक है, वो मैं बना नहीं रहा हूँ। इस तरह से इधर भी होगा, इधर भी होगा, उधर भी होगा, डियर स्टूडेंट, हर जगह होगा। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ ज़्यादा क्यों नहीं बनाया, क्योंकि डायग्राम अच्छा बन जाता इसलिए। हाँ जी, द सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस कैन बी डिवाइडेड, कितना पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। कौन कौन से सर, S1 एंड S2। सर S1 एंड S2 सर्कुलर एरिया है S1 एंड S2, ठीक है, टॉप एंड बॉटम, और S3 इज द कर्व सरफेस एरिया। ये डिटेल मैंने आपको बता दी। अब मैं गाउसियन थ्योरम अप्लाई करने जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिए। यस मैजिक। नाउ डियर स्टूडेंट आ जाइए, फ्रॉम गॉस थ्योरम, यस फ्रॉम गॉस थ्योरम एंड बेसिक डेफिनेशन फ्रॉम गॉस थ्योरम एंड बेसिक डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स, टोटल फ्लक्स लिंक्ड विथ द गाउसियन सरफेस कैन बी रिटन एज। कैसे लिखा जा सकता है सर, वही फॉर्मूला है, आप फ्लक्स लिखोगे, ये हो जाएगा डेफिनेशन E.ds, ठीक है, यही तो होता है फ्लक्स। सर अकॉर्डिंग गॉस थ्योरम टोटल चार्ज एनक्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, सही है सर, नो बोलो, यही होगा, यस दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, ये तो हो गया गॉस की थ्योरम और ये हो गया आपका बेसिक डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स। नाउ टेल मी डियर स्टूडेंट, व्हाट इज द टोटल चार्ज इनसाइड द गाउसियन सरफेस, बता सकते हो? हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन भी किया था और आपने आंसर अभी तक नहीं बताया, उसका आंसर लास्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। नाउ टेल मी व्हाट इज द, हाँ पता है, आंसर नहीं बताऊंगा उसका, हाँ क्योंकि आपने कमेंट बॉक्स में लिखोगे तभी पता लगेगा कि सही है गलत है। यस अरे भैया, लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा क्या होता है? लेमडा होता है Q अपॉन L, तो चार्ज क्या हो जाएगा, Q इजिकल टू लेमडा इंटू L, ठीक है, ये लेमडा और ये हाइट, तो टोटल चार्ज कितना आ जाएगा, सही है सुनो, तो यहाँ से आ जाएगा डियर स्टूडेंट, हैंस यू कैन से बिकॉज लेमडा इज इक्वल टू Q अपॉन L, सो टोटल चार्ज इनसाइड द गाउसियन सरफेस क्या आ जाएगा सर, लेमडा इंटू L, गॉट द पॉइंट। तो यहाँ लेमडा इंटू L पुट कर दे और इसको हम लिख सकते हैं सर S1 E डॉट डी S1 प्लस S2 E डॉट डी S2 और यहाँ से थर्ड सरफेस के लिए E डॉट डी S3। 3 सरफेस में बांटा था, 3 सरफेस में डिवाइडेड किया था, तो 3 सरफेसेस के लिए हम क्या निकालेंगे, लिंक्ड फ्लक्स निकालेंगे। उससे कितना लिंक्ड फ्लक्स है, एसोसिएट फ्लक्स निकालेंगे। तो 3 सरफेस के लिए हमने ये EDS1 EDS2 EDS3 लिख दिया। सर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम क्यों लिखा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, मैग्नीट्यूड हमने कंसीडर किया है सेम, ठीक है, रेडियली। तो यहाँ से चार्ज आ जाएगा लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब अप्लाई कर दीजिए EDS1, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रहा DS1, दोनों में एंगल कितना है 90, तो आप लिख सकते हैं यहाँ से EDS1 cos 90, ये हो गया S1। यहाँ से लिख सकते हैं आप S2, देखिएगा क्या आ जाएगा EDS2, ये भी 90, तो EDS2 cos 90, गेटिंग।
यस डियर स्टूडेंट, आ जाइए, ये हो जाएगा प्लस EDS3 की बात करें तो दोनों में एंगल कितना है 0, तो दोनों में एंगल कितना है तो 0, तो हम लिख देंगे EDS3 cos 0 और इक्वल टू में आप लिख दे लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर इतना बच्चों? अब मुझे ये बताओ cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? cos 90 की वैल्यू 0, तो तुम बन के हीरो। अब देखो यहाँ से cos 90 की वैल्यू 0, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये भी, अरे ना cos 0 1 होता है तो ये 0 नहीं होगा। 2 स्टेप 0 हो जाएगी, केवल ये स्टेप रहेगी। इसको आगे सोल्व करते हैं। आइए देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। अरे क्लियर है ना? ये मैंने क्या किया, मैंने केवल और केवल गॉस थ्योरम लगाई है और फ्लक्स की डेफिनेशन यूज की है। ठीक है, गॉस थ्योरम क्या कहती है? टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस पूरे सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस से कितना फ्लक्स है ड्यू टू दिस लीनियर चार्ज, वो हमने देख लिया Q अपॉन। और हमें बेसिक डेफिनेशन भी पता है, E डॉट ds, दोनों को कंबाइंड फॉर्म में लगा रहे हैं। अब टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? सर लैम्डा इंटू एल, तो लैम्डा इंटू एल रख देंगे यहाँ पे। और इसको कितने सरफेस में डिवाइड किया? 3 सरफेस में। तो वी हैव टू राइट इन 3 स्टेप ऑफ द सरफेस इन डिफरेंट फॉर्म ऑफ द फ्लक्स लिंक्ड विद द डिफरेंट surfaces. Each surface consists a individual surface due to this charge. That's why we have to write in different 3 step. क्लियर है? हर एक सरफेस के साथ में इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू अलग होगी, ऑब्वियसली होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइन ही एरिया के लिए है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया डिफरेंट होगा तो फ्लक्स भी अलग होगा, इसलिए तीनों के लिए अलग अलग हमने लिखा है। और एंगल देखा तो 90 वाली स्टेप्स तो गोज टू होम। हाँ, और ये 0 है तो ये रह जाएगा। इसको आगे सोल्व करते हैं। आइए, यस स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट, आ जाइए। हमारा जो लास्ट स्टेप रहा था वो था सर साइक्लिक इंटीग्रल, क्लोज इंटीग्रल। ठीक है, कौन सी सरफेस का? कर्व्ड सरफेस S3, तो ये रहा था EDS3 cos 0 लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो प्यारे बच्चों मुझे ये बता दो, क्या बता दूं? cos 0 का वैल्यू 1 है, शाबाश 1 है, वेरी गुड। और बचा क्या सर? इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर ले लो क्योंकि कांस्टेंट है, हमने कांस्टेंट कंसीडर किया है, यूनिफॉर्म लिया है। DS3 cos 0 कितना हो गया? 1। भैया ये 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे DS3 को तो DS3 E बाहर आ गया। आगे आ जाएगा लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, DS3 कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है? कर्व्ड सरफेस एरिया, बिकॉज दिस इज द DS3 सरफेस एरिया। ये क्या है? कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है? कितना है बताओ सर? 2 पाई आर एच। एच की जगह क्या ले लोगे? इसकी हाइट L। ठीक है, तो पुट कर दो E 2 पाई आर एल लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। L कैंसिल, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है भैया, यही था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटी लॉन्ग वायर। इसको K की फॉर्म में बदलते हैं। इसको K की फॉर्म में कैसे बदलेंगे आप देखिए प्यारे बच्चों। E इजिकल टू 2 से मल्टीप्लाई करो लैम्डा, यहाँ आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिखते हो? K। यस, तो इसको लिख दो 2K लैम्डा अपॉन आर। बोलो आया कि नहीं आया? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया ड्यू टू इन्फिनिटी लॉन्ग वायर की वजह से। और कैसा आ रहा है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ आर। गेटिंग एवरीवन? वेरी गुड। चलें आगे। यस। अच्छा डियर स्टूडेंट, अगर हम इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करें, वैसे बना चुके हैं लेकिन यहाँ पे अगर ग्राफ ड्रॉ करें तो ये फॉर्मूला आया था सर लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर और यू कैन से 2K लैम्डा अपॉन आर। सो E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आर। E क्या है? ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? R के, है ना? तो ग्राफ कैसा बनेगा? E में और R में कौन सा बोला? शाबाश, वेरी गुड, रिएक्टेंगल हाइपरबोला। अरे कौन बोला? रिएक्टेंगल हाइपरबोला। E इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कौन सा बोला है? रिएक्टेंगल हाइपरबोला। ठीक है, आयताकार अति परवलय। हाँ, कौन बोला? रिएक्टेंगल हाइपरबोला। ठीक है, तो इस तरह से हमने 2 एप्लीकेशन देख ली है गॉस थ्योरम की, और भी देखते हैं। चलिए बनिए, लाइक कर दीजिए। यस डियर स्टूडेंट,
आपके सामने एक अच्छा क्वेश्चन है, सोल्व कीजिए। आ गया, वेरी गुड। क्वेश्चन क्या है? सो देयर आर टू पैरेलल लीनियर चार्ज वायर विच आर सेपरेटेड एट डिस्टेंस d हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी λ1 एंड λ2। ओके, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? d। आपको फाइंड करना है कि इन दोनों पे कितना फोर्स लगेगा और उनकी नेचर क्या होगी। ठीक है, अगर दोनों प्लस प्लस है तो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। अगर दोनों अपोजिट ऑफ काइंड चार्ज के हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो अट्रैक्ट करेंगे। आइए देखते हैं वैल्यू क्या होगी। ठीक है, पर यूनिट लेंथ निकालेंगे क्योंकि इन्फिनिटी लॉन्ग वायर है ना, तो हमने कंसिडर किया ये वायर, ये इन्फिनिटी लॉन्ग वायर है प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी, ये सेकेंड वायर है प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी। गॉट द पॉइंट? बोथ हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी λ1 एंड λ2। ओके, दोनों की चार्ज हमने क्या कंसिडर किए हैं? पॉजिटिव कंसिडर किए हैं, बोथ आर पॉजिटिव। सो व्हाट विल हैपन? दे विल अट्रैक्ट और रिपेल? रिपेल ऑब्वियसली। सो रिपेल करेंगे तो वो फोर्स कितना होगा वो फाइंड करते हैं। डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच का? सर दोनों के बीच का डिस्टेंस है स्मॉल d, परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। आइए क्या करते हैं, अभी आप लोगों ने फाइंड किया था कि सर इसको भूल जाइए, अब फॉरगेट दिस, इसको बोल दीजिए वायर नंबर 1, ये वायर नंबर 2। ओके, नाउ कंसिडर डियर स्टूडेंट, यस डियर स्टूडेंट, आ जाइए। लीनियर चार्ज डेंसिटी λ1 एंड λ2 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? स्मॉल d। तो फाइंड करते हैं। अभी आप लोगों ने फाइंड किया था एक इन्फिनिटी लॉन्ग वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता था? यस, 2k λ/r। अब की बार r की जगह क्या दे दिया? d। तो मुझे बताओ, यहाँ पॉइंट ले लिया मैंने, यहाँ कोई पॉइंट ले लिया p, है ना, इस पॉइंट p पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? ड्यू टू वायर 1, तो ये आ जाएगा सर E1 इजिकल टू 2k λ1/d। आएगा नहीं आएगा? 2k λ1/d, 2k λ/r आया था, r यहाँ पे क्या है? अरे भैया इससे डिस्टेंस देख लो ना, ये कितनी डिस्टेंस है? यही तो है d, है ना। वेरी गुड। अब मुझे फोर्स निकालना है। अब मुझे बताओ, कोई चार्ज, एनी चार्ज, when it is placed in an electric field then it feel a force F is equal to QE। अगर भैया कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रखा हो यूनिफॉर्म, ये तो एक लाइन ड्रॉ की है, इसकी वजह से क्या होगी? बहुत सारी लाइन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आपने कोई चार्ज रख दिया तो इस पर फोर्स लगेगा नहीं लगेगा? कौन सा लगेगा? अरे बताओ, लगेगा नहीं लगेगा? F is equal to QE, यही तो लगता है फोर्स। मेरे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब मुझे पता है कि ये वायर सेकंड वाला भी क्या है? चार्ज वायर है। सो इट विल ऑल्सो हैविंग चार्ज। कंसिडर ए स्मॉल चार्ज ऑन इट। इस पे हमने स्मॉल चार्ज कंसिडर कर लिया, दैट इज dq। हमने स्मॉल चार्ज कंसिडर कर लिया, दैट इज dq। क्या चार्ज कंसिडर किया? dq। एक स्मॉल लेंथ ले ली dl, एक स्मॉल लेंथ भी ले ली मैंने इसी की, स्मॉल लेंथ ले ली dl। छोटा सा टुकड़ा ले लिया, छोटा सा पोर्शन ले लिया इस वायर का, जिस पे चार्ज मैंने क्या बोला? dq। तो इस पे जो फोर्स लगेगा डियर स्टूडेंट, वो फोर्स कितना लगेगा? कैन यू टेल मी? कैन यू टेल मी? यस सर, यस सर। इस पे फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू Q यानी dQE1। बोलो लगेगा नहीं लगेगा? ये फोर्स किस पे है सर? ये 2 पे फोर्स है, किसकी वजह से? 1 की वजह से। और मैं इसको अच्छे से लिख देता हूं। यस, ये जो फोर्स आया है ये F2 पे आया है, किसकी वजह से सर? 1 की वजह से। तो यू लिखोगे dQE1। ठीक है, 2 पे निकाल रहे हैं, किसकी वजह से सर? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फर्स्ट। तो बता दीजिए कितना आ जाएगा? ध्यान दीजिए पहले बच्चों, यहाँ पे dQ चार्ज, स्मॉल चार्ज या एलिमेंटल चार्ज, इसको क्या बोलते हैं? एलिमेंटल चार्ज यानी अव्ययी चार्ज, स्मॉल चार्ज dq। सर क्या आ जाएगा? dq इज इक्वल टू लीनियर चार्ज डेंसिटी। कितनी है लीनियर चार्ज डेंसिटी इसकी? सर इसकी है λ2, तो ये आ जाएगा λ2। लेंथ कितनी कंसिडर की है? dl। तो ये चार्ज आ गया, ये क्या आ गया? इस पे चार्ज आ गया। ठीक है सर, इसका चार्ज आ गया, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, इसकी वजह से इस पे फोर्स कितना लग रहा है? dQE1। तो फोर्स कितना आ जाएगा? Now force on wire 2 due to field E1
कितना लगेगा सर? ये लगेगा F21 = DQE1। वैल्यू पुट कर दो, लैम्डा 2DL, तो इसका हो गया चार्ज का। E1 की वैल्यू कितनी है? 2K λ1/d। क्या आ जाएगा यहाँ से बच्चों? ये आ जाएगा 2K λ1 λ2/d × dl। अगर मुझे पर यूनिट लेंथ निकालना है तो क्या आ जाएगा? फोर्स F21/dl = 2K λ1 λ2/d। This is the force due to a linear charged wire on another linear charged wire. Both are parallel and separated by small distance d। अच्छा ये बताओ F12 कितना आएगा, यानी सेकंड वाला कितना फोर्स लगाएगा इसमें? सेम एक्शन रिएक्शन लो। यस, तो ये सिमिलर फोर्स होगा F12 के। पर यूनिट लेंथ है 2K λ1 λ2/d। ये क्या है? 2K λ1 λ2/d। तो इस तरह से इस पे न्यूमेरिकल वैल्यू भी पूछी जाती है, फॉर्मूला भी पूछा जाता है डायरेक्ट, काफ़ी एग्जाम्स में पूछा गया है। न्यूमेरिकल वैल्यू दे देंगे तो फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। क्या फॉर्मूला है? 2K λ1 λ2/d। यस, λ1 λ2 आर लीनियर चार्ज डेंसिटीज ऑफ बोथ वायर्स, d इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड k यू नो वेरी वेल, 1/4πε0। यस, चलते हैं आगे। यस मैजिक। नाउ डियर स्टूडेंट, आज एक न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। यू हैव ए फील्ड 1.8 × 10⁵ न्यूटन। एक फील्ड दे रखा है, इट एग्जिस्ट एट ए पॉइंट P सिचुएटेड 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम लीनियर चार्ज वायर। ओके, देन फाइंड द लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑन द वायर। अब इस पे वायर पे लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी होगी फाइंड कीजिए। हमें पता है सर ड्यू टू इन्फिनिटी लॉन्ग वायर, प्लस इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, इस पे लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है सर? लैम्डा। और कितनी डिस्टेंस पे है? r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड? 2K λ/r। ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अप्लाई कर दो सर। 2K λ/r कितना दे रखा है? 1.8 × 10⁵ 2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? k का वैल्यू कितना है? 9 × 10⁹ लैम्डा कितना है फाइंड करना है। यस, r कितनी है? 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे? मीटर में, तो 10⁻²। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ योर? यहाँ से जब आप फाइंड करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखिएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा। ये हो गया 1.8 10⁵ × 20 × 10⁻²। ओके, नाउ डिवाइड कर दीजिए किससे? 2 × 9 × 10⁻9 से। तो बता दीजिए सोल्व करने के बाद में क्या आंसर आ जाएगा। यहाँ से देखिएगा 982 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये पॉइंट रहेगा और एक पॉइंट यहाँ से कैंसिल, तो 2 × ये आ जाएगा 9 ऊपर जाएगा -11 से -6 10⁻6 कूलम पर मीटर। तो -6 को आप क्या लिख सकते हैं? माइक्रो। लैम्डा = 2 माइक्रो कूलम पर मीटर। दिस इज द आंसर, दिस इज योर आंसर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस डियर स्टूडेंट, you have another question. What is that? An electron revolves around a linear charged wire having linear charge density 1.0 10⁻⁻6 कूलम पर मीटर, यानी 1 माइक्रो कूलम पर मीटर in a circular orbit. Okay, रेडियस गिवन है आपको 0.1 मीटर। देन फाइंड द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो ऑर्बिटल स्पीड क्या होगी इलेक्ट्रॉन की, वो फाइंड हमें करना है। तो प्यारे बच्चों ध्यान देना कि ये जो आपका इन्फिनिटी लॉन्ग वायर था, ठीक है, प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, इस पर आपने लीनियर चार्ज वायर चार्ज डेंसिटी कितनी है? लैम्डा। अब इलेक्ट्रॉन को आप इसको रिवॉल्व कराओ इसके अराउंड, ऐसे जब रिवॉल्व कराओगे तो इस पर एक फोर्स लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। और वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कौन करेगा? कौन करेगा बताओ? ये भी चार्ज है, और चार्ज पार्टिकल पे लीनियर चार्ज क्या लगाएगा? फोर्स। कौन सा फोर्स? कूलम्ब फोर्स। तो उस कूलम्ब फोर्स की वजह से इस पे ये देखिए, ठीक है, इसका स्पीड कंसिडर कर लेते हैं v, और ये इलेक्ट्रॉन हो गया, मास इसका m हो गया, ठीक है।
इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा, इनसाइड, Fc सेंट्रीपिटल फोर्स। तो प्यारे बच्चों हमें पता है कि टू रिवॉल्व इन सर्कुलर ऑर्बिट द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स is provided by कौन प्रोवाइड करेगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी की वजह से लगने वाला कूलम्ब फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट इज वो क्या आ जाएगा, Fc इजिकल टू Fe। Fc क्या होता है सर, mv² अपॉन r, अगर रेडियस r है इसकी, गेटिंग दिस, और Fe क्या होता है सर, Q इंटू ई। भाई कोई चार्ज है और यहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, किसकी वजह से, लीनियर चार्ज वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, नहीं होगा, कितना 2k लैम्डा अपॉन r। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, इसको जब आप पुट करेंगे यहाँ पे mv² अपॉन r, Q 2k लैम्डा अपॉन r, r से r कैंसिल, और वेलोसिटी आपके पास में आ जाएगी यहाँ रूट में 2q k लैम्डा अपॉन m। सारी वैल्यू आप पुट कर दो, ऑल वैल्यूज आप पुट कर देंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। अच्छा क्या वैल्यू आ जाएगी जगह बताइए, अगर मैं वैल्यू पुट करूं यहाँ पे, सो व्हाट विल यू हैव, ध्यान दीजिएगा सर, v इजिकल टू स्क्वायर रूट 2, चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन पे, व्हाट इज द चार्ज, 1.6 10⁻⁻19। यहाँ q की वैल्यू हमने पुट कर दी। अच्छा k की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10⁻9। अच्छा लैम्डा ये दे रखा है, लैम्डा 10⁻6, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 10⁻6 डायरेक्ट लिखें। मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, याद है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। व्हेन यू सॉल्व इट, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी डियर स्टूडेंट, आपको मिलेगी वो मिलेगी 5.65 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी 5.65 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और भी अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे एडवांस, तो बने रहिए। ऑल द बेस्ट।